All right. Previously, we have seen this. We have defined the current. We have defined the. We have seen field is there inside conductor, which pushes the electrons in one certain direction, which makes the current. How much field will be there? If we know the potential difference across the conductor divided by length, will give us the field inside the conductor. That is potential gradient, we call it. So field is there inside the conductor. We have to introduce the field in order to push the electrons. That same process will follow. Electrons will tend to decrease and they will tend to come this side. In other words, they will tend to decrease, but they cannot because continuously field is supplied or in continuously potential is connected, potential difference. So the electrons can be provided from the external source. यहाँ से negative terminal से electrons आएंगे इसमें, यहाँ से निकलते रहेंगे. They will circulate. So we are providing the source of electrons from external support. Therefore, field is not going to be zero, as in the case of electrostatics. वहाँ पे हमने देखा था, वहाँ पे फील्ड जीरो हो जाती, जल्दी से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. यहाँ भी कोशिश करते हैं, but battery is connected. Therefore, they cannot make the field zero till battery is connected. Current we are defined. Rate of flow of charge. चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं. पर यूनिट टाइम कितने चार्ज क्रॉस हो गए एनी क्रॉस सेक्शन, दैट इज कॉल्ड करंट. ऑलराइट. और करंट का यूनिट भी हमने देखा था, एम्पियर है और कूलम पर सेकेंड. And direction of current will be same as that of the flow of positive charge or flow of negative charge. पॉजिटिव चार्ज करंट की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज अगर है तो करंट की डायरेक्शन में जाएंगे, बिकॉज फील्ड विल पुश देम अवे. नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, दे विल फ्लो अगेंस्ट द करंट. पॉजिटिव फ्लो ऑफ, दैट इज in the direction of flow of positive charge, positive to negative terminal, that is opposite to flow of electrons and same as that of flow of positive charge. पॉजिटिव चार्ज जिधर जाता है उधर ही करंट होता है. किधर से किधर होगा? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल. So we can say positive terminal is providing positive charge which is going toward this. Negative electrons, negative terminal is providing negative charge which comes in opposite direction, which is opposite to the flow of current. ठीक है. और instrument which indicates the presence of current is called galvanometer, and which measures the amount of current is called ammeter. And constant current flows. In that case, average current will be equal to current, that is nothing but the instantaneous current. Current is, if current is constant, then average current and currents are equal. All right. उसके बाद क्वेश्चन था ये, 1 ampere current flows and you have to find how much electrons will cross in 1 second. We written formula I is equal to Q by T, and Q is equal to NE होता है, क्वांटाइजेशन नेचर ऑफ द चार्ज. ठीक है. N कैलकुलेट करना है. यहाँ पे माइनस नहीं पुट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज नंबर निकालने हैं हमें. माइनस विल इंडिकेट कि वो किधर से किधर फ्लो हो रहा है. तो वैल्यू पुट कर दी हमने ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज की. सॉल्व करेंगे. 6.25 into 10 to the power 18 electrons will cross per second to make 1 ampere current. अगर 2 एम्पियर करंट होगा तो इसका डबल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स into 2. And if it is asked find out
आफ्टर 1 hour हाउ मेनी चार्ज विल क्रॉस, तो इसको 60 into 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 1 सेकंड के लिए, एंड फॉर टाइम t it will be multiplied with t, that should be converted in seconds, है ना. 1 second है इसलिए t is equal to 1 पुट कर दिया हमने, जो भी टाइम दिया होगा that much time in seconds should be put, because current is also charge per second, coulomb per second. ठीक है यहाँ तक, दिस वाज द होमवर्क. और ये डन हो गया. तो ये वाला देखो, इसमें हमें Q को पहले सेपरेट करना है, वहीं से डिफरेंशिएशन नहीं करना है. समझ में स्टार्टेड लाइक दिस dt by dt, ऐसा नहीं, पहले Q को सेपरेट कर लो, Q को इधर ले आओ, 2 को इधर भेज दो, दैट मेक्स इट 2, 3 + 2 रूट Q इज देयर, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, ये आ जाएगा. नाउ यू कैन फाइंड आउट dq by dt, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, कांस्टेंट का 0, 4t का 4. Now putting the value of t, you get this t epsilon alert. Note down fast. Done. Now we'll see. ये क्वेश्चन था, ये हो गया था. also find the average charge, ये कर लिया था उन्होंने. एवरेज करंट, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, टोटल चार्ज निकाल लिया था टाइम. करंट डेंसिटी में देखो, करंट डेंसिटी is the ratio of current to the area of cross section at that point. जहाँ पे हमें करंट डेंसिटी निकालनी है, एरिया दिया होगा, करंट दिया होगा, डिवाइड कर दो, या फिर हमें करंट डेंसिटी दी होगी, एरिया वेक्टर दिया होगा, तो करंट निकाल सकते हैं. डायरेक्शन क्या है इसकी, सेम एज दैट ऑफ द करंट. करंट की डायरेक्शन अगर आती है तो इसकी लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं. All right. Now ये क्वेश्चन था, देखो इसमें भी सम ऑफ यू आर डूइंग मिस्टेक. डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करने हैं, 3 and 2 हो गया, प्लस 2 into -2. पहले से माइनस मत लिखो, सम ऑफ यूनिट माइनस हियर आल्सो, माइनस हियर आल्सो, तो दैट विल बिकम प्लस. तो सब प्लस होता है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, बीच में प्लस है. आफ्टर दैट इफ सम कोएफिशिएंट आर माइनस, तो उसको ब्रैकेट में ऐसे लिखो. तो दिस बिकम्स 2 एम्पियर. क्लियर. डॉट प्रोडक्ट में, dot product is also called scalar product. In that case, end result will not have direction. That is I cap, J cap, K cap will not be there. Cross product में directions रहेंगी. When we do A cross B, in that case I cap, J cap or K cap, at least one of them should be remained for direction, or 3 can be there. All 3 directions can be involved, but इसमें constant आएगा, no direction, scalar quantity, no direction involved. We know that product of vectors are of 2 types. One will give us the scalar result, that is called dot product or scalar product. In that, final quantity will not be having any direction. This one,
डॉट प्रोडक्ट है, नो डायरेक्शन इन्वॉल्व, डायरेक्शन मीन्स आई कैप जे कैप के कैप। ऑलराइट, ये क्वेश्चन था कि रेशियो ऑफ रेडियाई वाज गिवन है, R1 by R2 इज गिवन 1/2, जहाँ पे रेडियस कम होता है, यस एनीथिंग, तो रेडियस का इनवर्स रहेगा, जहाँ पे रेडियस, ओके यहाँ पे कुछ म्यूटेड, किसका ऑडियो इज ऑन, प्लीज म्यूटेड, ओके। तो are you there? I wish you are there in the class. Just take care. Okay, देखो, constant current is flowing in non-uniform conductor. Find the ratio of current density if ratio of radii is 1:2. R1 by R2 is 1/2 given. So current density is current upon area of cross section. और एक ही कंडक्टर है, करंट सेम रहेगा उसमें, ठीक है। और A2 by A1 है, तो ये पाई R2 स्क्वायर बाई पाई R1 स्क्वायर, यहाँ से R2 by R1 will be 2:1, है ना, तो ये R2 by R1 will be left out, I will get cancelled, this is 2:1, 4:1, तो जहाँ पर एरिया क्रॉस सेक्शन जहाँ कम है, R1 is less, तो वहाँ पे करंट डेंसिटी इज मोर, बिकॉज current density is inversely proportional to area. If area decreases, current density increases. कंडक्टर ऐसा ऐसा बनना, यहाँ पर जो रेडियस है और यहाँ पर जो रेडियस है, आधी है इसकी, तो करंट डेंसिटी विल इंक्रीज बिकॉज करंट लाइंस, ऐसे बोल सकते हैं, जो करंट डेंसिटी की लाइंस हैं उनको हम, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं वो करंट डेंसिटी को भी रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब करंट डेंसिटीज आर स्ट्रीम लाइंस बोल सकते हैं उनको, दे कम क्लोजर, दे आर कमिंग क्लोजर, तो डेंसिटी इंक्रीजेस, करंट की जो लाइंस है, करंट डेंसिटी की जो लाइंस है, डायरेक्शन है, दैट कम्स क्लोजर बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन रेडियस, करंट डेंसिटी गोज अप, कम टाइम, कम एरिया से क्रॉस करना पड़ा उसको, रेडियस 1 है पर ये इधर वाले की, ऑफ कोर्स R1 बाय, इसको मैं ऐसा बना सकते, देखो जस्ट पिक अ टर्न ऐसा, एरोज अपोजिट करने पड़ेंगे। यहाँ पर क्लोज है, यहाँ पर दूर दूर है, डेंसिटी कम हो गई, 4:1, ठीक है। रेडियस दिया था, एरिया क्रॉस सेक्शन नहीं दिया था, some of you taken as area of cross section, which is not correct, रेडियस है, एरिया क्रॉस सेक्शन में स्क्वायर हो जाएगा। ऑलराइट, ये भी था, देखो करंट कांस्टेंट रहेगा, दिया है कांस्टेंट करंट फ्लो, कांस्टेंट करंट दिया है तो कांस्टेंट ही रहेगा ना करंट, करंट डेंसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया,
if area decreases, current density increases. Narrow हो गया, तो कम एरिया क्रॉस सेक्शन है, ज्यादा करंट डेंसिटी होगी। फील्ड लाइंस के लिए भी वही ट्रू है, फील्ड लाइंस भी पास में आ जाएंगी। देखो फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ रही है। ये फील्ड लाइंस दे आर कमिंग क्लोजर, दे आर क्राउडिंग, क्राउडिंग मीन्स इंक्रीजिंग। फील्ड लाइंस अगर पास में आ गई तो फील्ड इज बिकमिंग स्ट्रॉन्ग देयर, तो इनका दोनों का आंसर सेम रहेगा। तो फील्ड लाइंस जो करंट डेंसिटी का होगा सिचुएशन, वही फील्ड लाइंस का। फील्ड लाइंस विल स्ट्रॉन्ग फील्ड मींस मोर करंट डेंसिटी देयर। एरिया क्रॉस सेक्शन कम हो रहा तो फील्ड लाइंस भी क्लोज आ रही हैं, करंट डेंसिटी की लाइंस भी हम एज्यूम कर सकते हैं सेम है, वो भी क्लोज आ गई। ऑलराइट, it means lesser the area, more is the current, I mean more is the current density, more is the field there, crowding होगी वहां पर, more field lines, more current density lines are crowding to the small place, small area, and therefore increment both depends upon the that current density depends upon the area. Field lines are represented by the distance between them. Sorry, ठीक है, डिस्टेंस कम हो गया उनके बीच में, तो दे आर इंक्रीजिंग, इट मींस वहां पर फील्ड इज स्ट्रॉन्ग देयर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इसमें भी देखो ये स्ट्रीम लाइंस रिप्रेजेंटिंग द करंट डेंसिटी कम्स क्लोजर, यहाँ पे देखो ये सेम नंबर ऑफ लाइंस आर एट लेसर एरिया, यहाँ पे बड़े एरिया पे, तो यहाँ पर करंट डेंसिटी विल इंक्रीज। Same thing will be valid for electric field also. देखो ये क्वेश्चन दिया था, इसमें हमने डीए कैलकुलेट कर लिया था। यहाँ पर जे जो है, जे इज गिवन है, दैट इज ये वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट कर दो 0 से r/2 तक। तो लेट्स सी, हियर इट इज डन। ठीक है, तो इसमें करंट डेंसिटी, इस छोटे से एलिमेंटल एरिया में करंट डेंसिटी कितनी रहेगी, आई मीन करंट कितना रहेगा, डी आई इज इक्वल टू जे इंटू एरिया, करंट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इंटू एरिया। ये छोटे से एरिया में करंट डी आई लेंगे, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, तो डी आई का तो इधर इंटीग्रेट किया, डी आई का तो आई हो गया, और यहाँ पर जे की वैल्यू ऊपर से दी हुई है हमें, ये वाले ये पुट किया, और डी हमने सेपरेट निकाला था, दैट पुट कर दिया, कांस्टेंट हैज बीन टेकन आउट, और ओके दिस ऑलरेडी वी हैव मेड, इसको हटा देते हैं। और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा हुआ है, आर क्यूब, आर क्यूब का क्या हो जाएगा, r4 हो जाएगा, नीचे भी 4 आ जाएगा। लिमिट लगा देंगे 0 to r/2। कैन यू सी, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, ठीक है। तो जस्ट मिनट, लेट मी पुट इट। ठीक है, तो
इंटीग्रेशन करके लिमिट लगा दो उसकी, दिस इज 0, दिस इज r/2। तो स्मॉल r की जगह r/2 पुट कर देंगे, ये तो 0 ही है सेकंड लिमिट। तो दिस बिकम्स, फाइनल आंसर इज दिस, k pi r⁴/32। सिंप्लीफाई कर लो इसको, दिस इज द फाइनल आंसर। आर यू देयर? Yes, sir. Okay. Any difficulty in this? Tell me. This is of level 2 question. Do you want to ask anything in this? ठीक है, एलिमेंट्री एरिया लिख लिया, बिकॉज वेरिएबल कंडीशंस हैं, वेरिएबल कंडीशन में हम इंटीग्रेशन करते हैं। जे अगर कांस्टेंट होता तो फिर हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, जे इनटू होल एरिया से मल्टीप्लाई कर देते। Some of you have done it right, some of you did correctly today, but still I'm not getting all the homework. I don't know how many times I have to repeat. Done it? Okay. यहाँ पर देखो लोअर लिमिट 0 है, तो इसलिए कुछ भी माइनस कुछ भी नहीं लिखा। सपोज अगर ऐसा होता r2 r/2 से r तक निकालो, तो लोअर लिमिट r/2 हो जाती है, अपर लिमिट r हो जाती है ना। तो जो अगर ऐसा होता 0 से लेकर r निकालो, सेंटर से लेकर r तक, सरकमफ्रेंस तक निकालो, तब ये फुल सरफेस एरिया के लिए 0 से r आएगा, हाफ सरफेस एरिया तक ही है। जैसे ये सरकम ये है, तो हाफ सरफेस एरिया r/2 तक, इतने के अंदर निकाली हमने, 0 से लेकर r/2 तक। होल क्रॉस सेक्शन में लिमिट विल चेंज, r आ जाएगी लिमिट 0 से लेकर r तक, और r/2 से r, ये सपोज r/2 है, ये वाला एरिया आ जाएगा। तो दैट डिपेंड्स, you know this much, you can change the limit and get it. Lower limit is 0 here, इसलिए माइनस नहीं किया। बीच से बोल सकते थे r/2 to r/3 निकाल, r/2 to 3r/2 निकालो, नहीं 3r/2 तो बाहर हो जाएगा, बाहर तो है ही नहीं करंट, है ना। r/4 to r/2 निकालो, तो वो लिमिट पुट कर देते हैं हम। आगे देखेंगे अभी। Now today we are going to see drift velocity of electron. क्या होता है, देखो कंडक्टर है सपोज, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, फिर कोलाइड हो जाएंगे, इधर चले जाएंगे, है ना।
फिर इधर आ जाएंगे कोलाइड होकर. बट व्हेन वी पुट देम अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज इधर प्लस लिया हमने, सपोज हमने देखो तो इधर सपोज हमने प्लस ले लिया, इधर माइनस. Without potential difference, if electron was going like this, if we apply the potential difference, electron will go like this. It will not start moving like this. इधर ऐसे नहीं, वो अपना मोशन तो करता रहेगा, बट थोड़ा सा डिफ्टिंग हो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ. सपोज यहाँ पे कोलाइड हो गया, सपोज इट इज कोलाइडिंग हियर गोइंग दिस साइड, तो इसमें we assume that it is going further, collide हो गया आगे, same pattern follow करेंगे, but it will be slightly leading, इतना drift है ना. तो it has the tendency to drift apart from the regular motion. इधर drift होगा positive end of the conductor. That's what is shown in your textbook. देखो ये one is your blue line, ऐसा उसका path था पहले. It has come up to be, but moment we apply the field, इधर प्लस लगाया इधर माइनस लगाया, it is drifting now. It is slight drift is there. ऐसा यहाँ तक, ये यहाँ इतना drift हो गया. In that much interval of time, it is drifted ahead towards the positive end of the conductor. That's what is divided by time. How much is the drift divided by time? कितने डिस्टेंस ड्रिफ्ट हो गया डिवाइड बाय टाइम इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो वीडी इसका सिंबल क्या रहेगा, वीडी. ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बिकॉज इट विल बी ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर. इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच इलेक्ट्रॉन विल गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड. जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो वो टेंडेंसी टू गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ कंडक्टर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स लगता है उसके ऊपर है ना. तो रैंडम वेलोसिटी इज वेरी फास्ट, दे आर मूविंग लाइक गैस पार्टिकल्स. बहुत फास्ट मूव करते हैं अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना. क्वाइट ए हाई रैंडम स्पीड, बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी डिपेंडिंग अपॉन various factors which we are going to calculate, but certainly it is not that high. बहुत कम रहती है because of collisions and going back, फिर going changing its direction. So net drift is depending upon various factors, but it's certainly small value as compared to random velocity. ठीक है, कितनी होगी drift velocity? We can find out using the equations of motion, kinematic equation of motion. V is equal to u plus at. एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा. एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन टाइम, नहीं फोर्स अपॉन F इज इक्वल टू ma. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास. तो मास जो है इलेक्ट्रॉन का m लेंगे, चार्ज भी है इलेक्ट्रॉन का e. फोर्स कितना लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू QE. Q की जगह E ले लेंगे, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी E. माइनस है तो माइनस लिख सकते हैं, माइनस दे विल बी गोइंग इन अपोजिट टू दैट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस है. ठीक है, तो E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. Capital is the electric field, uniform field. Uniform field. M is the mass of electron. टाउ क्या रहेगा, टाइम जो है बिकॉज मल्टीपल कोलिजन के बाद यहाँ पहुंचा ये, तो ये सबका टाइम, ये वाला टाइम, फिर ये वाला टाइम, फिर ये वाला टाइम, फिर ये टाइम, फिर ये टाइम, फिर ये टाइम. एवरेज टाइम बिटवीन द, किसी में कम लग रहा है तो यहाँ पे जल्दी कोलाइड हो रहा है, और यहाँ पे ज्यादा टाइम लग रहा है, यहाँ पे और ज्यादा टाइम लग रहा है.
तो एवरेज टाइम between two successive collisions. Successive collisions called relaxation time. For that time interval, system can relax. उतने टाइम तक कोलिजन नहीं हो रही, ऐसा एज्यूम, ऐसा नाम दिया गया उसको. तो टाउ इज व्हाट? टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिजन्स, also called relaxation time. We assume that system is relaxing. For that duration, collision is not there. एवरेज की बात हो रही है, ठीक है. ठीक है, टाउ क्या टाइम इंटरवल ही है, बट इट इज एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स. फोर्स निकाल लिया. फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी चार्ज माइनस ई है इनटू कैपिटल ई. एक्सेलरेशन निकाल लिया, मास से डिवाइड करके ये एक्सेलरेशन आ गया. नाउ काइनेमेटिक इक्वेशन, एवरेज वैल्यू लेंगे मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज. तो एवरेज इनिशियल एवरेज वेलोसिटी जीरो ली जाती, बिकॉज some of them, even if field is applied, some of them are going this side, some are going this side, some are going this side. इस तरह से डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, इवन इफ फील्ड इज अप्लाइड. तो एवरेज वैल्यू तो उनकी जीरो ली जाएगी. एंड ए की वैल्यू हमने ऊपर से पुट कर दी ये वाली. और टाइम इंटरवल का एवरेज क्या है? टाउ बोलते हैं उसको. तो दिस इज व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और न्यूमेरिकल्स के लिए माइनस साइन हटा देंगे हम. We will use the magnitude. माइनस साइन का अपना इंडिकेशन है कि वो फील्ड के अपोजिट जा रही है. मैग्नीट्यूड इतना रहेगा. कितने कितने पे डिपेंड कर रही है? हाउ मेनी फैक्टर्स इट इज डिपेंडिंग. ओके, लेट मी शो यू इन दिस व्यू. Just a minute. You can end it here. एक मिनट, या डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एंड कर सकते हैं. सब somebody asks you to derive. ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं बाद में. तो दिस इज डन. इसको हम चेंज भी कर सकते हैं. On what factors it is depending? Magnitude of charge of electron, वो तो फिक्स है, कांस्टेंट है. मास भी फिक्स है. तो वेरिएबल्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा सकते हैं हम, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी. और टाउ, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, कम कब होगा? तो हाउ कैन वी इंक्रीज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन? अगर एवरेज टाइम बढ़ गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी. एवरेज टाइम बढ़ाने के लिए उनको स्लो डाउन करना पड़ेगा. वन एंड से दूसरे एंड तक जाने, फ्रॉम वन कोलिजन टू अदर कोलिजन के लिए स्लो डाउन करना पड़ेगा. स्लो डाउन करने के लिए टेम्परेचर कम करना पड़ेगा. इफ यू रिड्यूस द टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन्स विल स्लो डाउन एंड एवरेज टाइम विल गो अप. रैंडम वेलोसिटी कम करनी पड़ेगी, उनकी टेम्परेचर कम करना पड़ेगा. तो दो टाइम के, दो कोलिजन के बीच में एवरेज टाइम बढ़ जाएगा. तो एवरेज टाइम बढ़ाना है हमें. एवरेज टाइम बढ़ाने के लिए उनका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा. दे आर लाइक गैस पार्टिकल्स. इफ यू हीट देम, हीट द कंडक्टर, दे स्टार्ट मूविंग फास्ट, विल कोलाइड अर्ली. इन दैट प्रोसेस ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल कम डाउन. उनको मोर कूलर कंडक्टर यू कीप इट, मोर विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. कूल कंडक्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हॉट कंडक्टर.
लिख दो यहाँ पे, cold conductors will have more drift velocity of electrons. ये क्वेश्चन बोर्ड में भी कई बार रिपीट हुआ है. व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर. आगे मैंने क्वेश्चन दिया भी है, टेम्परेचर बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटती है. क्यों? बिकॉज दे स्टार्ट मूविंग फास्ट, दे विल कोलाइड अर्ली. दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम कम हो जाएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो जाएगी. तो बेटर टू कीप द कंडक्टर कोल्ड इफ पॉसिबल. To have the more drift velocity, more current. More drift velocity means they will be drifting fast. More current will be there. Less resistance. Resistance के साथ भी compare कर सकते हैं. जो अच्छे कंडक्टर होते हैं उनमें drift velocity is more. मतलब resistance is less, drift velocity is more. इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पोटेंशियल दे देंगे तो E is equal to V by L पढ़ा अभी हमने, रिवाइज भी किया था. तो पोटेंशियल डिफरेंस से चेंज कर सकते हैं हम इसको. लेट्स डू दैट. ठीक है, यहाँ तक डेरिवेशन यू कैन फिनिश इट हियर इटसेल्फ. और ये भी उसमें ये सब नहीं लिखना है. कोल्ड कंडक्टर विल हैव मोर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये एडिशन फॉर यू फॉर अदर क्वेश्चंस के लिए. डेरिवेशन में ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कुछ नहीं देनी है. You will lose your time for the next questions. ठीक है, यहाँ पे ओके है. This you have to derive and remember also for writing the questions. Direct questions भी आ सकते हैं, वैल्यू पुट करके सॉल्व करो. इनडायरेक्ट भी आ सकते हैं. What is the effect of E? What is the effect of heating? Or what is the effect of potential difference? Since E is equal to V by L, V is the potential difference, L is the length of the conductor. तो E की जगह V by L पुट कर सकते हैं. यहाँ पर देखो 4 टर्म्स थे, अभी कितने हो गए? 5 हो गए, जिसमें ये तो कांस्टेंट है. नथिंग कैन बी डन इन दैट. E by M. ठीक है, तो लेट्स सी दिस एक्स्ट्रा थिंग्स. तो इसको थोड़ा सा ऊपर करना. Other formula can be this also. ये कहाँ पे काम आ सकता है? पोटेंशियल डिफरेंस. सपोज बोला जाए दो कंडक्टर्स हैं, दोनों को पैरेलल लगा दिया, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है. फिर क्या डिसाइड करेगा? लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. या फिर सिंगल कंडक्टर की हमने लेंथ बढ़ा दी, पहले छोटा कंडक्टर यूज किया, फिर बड़ा कंडक्टर यूज किया, लेंथ बढ़ा दी, पोटेंशियल डिफरेंस वही रखा, सेम बैटरी में कनेक्ट किया, टेम्परेचर भी सेम रखा. तो केवल लेंथ बढ़ाने से, सेम बैटरी के साथ कनेक्ट करने से, पोटेंशियल डिफरेंस भी कांस्टेंट रखो, तो लेंथ बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटती है. बड़ा लेंथी कंडक्टर लेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल डिक्रीज. कम होती, काफी मिलीमीटर के ऑर्डर की रहती है. रैंडम वेलोसिटी विल बी वेरी फास्ट. इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं अंदर, they are very very fast, but net drifting towards the positive end of the conductor will be of order of few millimeter or few centimeter per second. We can find out by using these parameters. और E by M, रेशियो ऑफ चार्ज. सपोज कोई बॉडी है, उसके ऊपर उसका मास m है, चार्ज q है, तो q by m is called specific charge. चार्ज पर यूनिट मास is called specific charge. कभी तुम्हें E by m डायरेक्ट दे दे, specific charge of electron is say, of course charge of electron हमें पता होना चाहिए, बट कैलकुलेट करके तुम्हें दे दिया पूरा. E की वैल्यू पुट कर दी, मास की वैल्यू, मैग्नीट्यूड पुट करेंगे ना. यहाँ पे हम मॉड ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड लिखा है हमने ऊपर, तो माइनस नहीं पुट करेंगे अभी. तो मैग्नीट्यूड में ड्रिफ्ट स्पीड बोल सकते हैं इसको, तो माइनस नहीं लिखेंगे ड्रिफ्ट स्पीड में. तो E by m is called specific charge of electron.
और Q by M होगा तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ चार्ज बॉडी। ये वर्ड जो है sometimes you may come across specific charge per unit mass। यूनिट मास का चार्ज है, इसीलिए इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफाइड मास। 1 ग्राम का या 1 किलोग्राम का चार्ज कितना है, टोटल मास का ई है, तो 1 यूनिट मास का कितना है, 1 ग्राम या 1 किलोग्राम का ई वाई है, विच इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। जैसे स्पेसिफिक हीट पड़ी थी, स्पेसिफिक हीट क्या थी, हीट पर यूनिट मास था, वैसे पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर भी था उसमें, बट यहाँ पर केवल मास, चार्ज पर यूनिट मास। ऑलराइट, so these are the terms which you may come across। और एक क्वेश्चन इसका देखते पहले, ये वाला एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। नहीं अभी नॉट नाउ यहाँ तक। इसके बाद ये क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रिलैक्सेशन टाइम और एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस। अभी मैंने बताया था अगर टेम्परेचर बढ़ा तो ये रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन विल कम डाउन बिकॉज दे विल स्टार्ट मूविंग फास्ट। जल्दी पहले सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक से they were taking 1 microsecond, if you heat it तो they will take half microsecond। जल्दी उनकी स्पीड बढ़ती है हीट अप करने से, सिमिलर टू द गैस पार्टिकल्स, दे आर द गैस इक्वल टू गैस पार्टिकल्स, फ्री इलेक्ट्रॉन। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा ना, इट विल डिक्रीज बिकॉज देयर रैंडम वेलोसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, जो उनकी नॉर्मल एक रैंडम वेलोसिटी होती है, जो नॉर्मल चलने की वेलोसिटी, इधर से इधर गए फिर इधर गए फिर इधर गए कोलाइड करते करते, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट द एंड, उस पर फोकस है। तो पहले ये हमने क्वेश्चन कर लिया। अभी बताओ what is the effect on drift velocity of electron if temperature of conductor increases। temperature of conductor अगर बढ़ गया तो ये कम हो गया टाउ। फार्मूला क्या था अपने पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, ई टाउ बाई एम। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया ये कम हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम हो गई, इट बिकम द पुअर कंडक्टर, ऐसे बोल सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से इट बिकम द पुअर कंडक्टर। टेम्परेचर कम रखना अच्छा है, टेम्परेचर कम करते जाओ इट बिकम्स बेटर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर बन जाता है कम टेम्परेचर पर। तो डिक्रीज किया तो स्लो डाउन हो जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे अभी आगे, they will take more time, tau will go up, drift velocity will go up। तो सेकेंड का इंक्रीजेस। तो कूल करना अच्छा रहता है, कूल करने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती है, दे बिकम बेटर कंडक्टर। आगे चल के हम पढ़ेंगे भी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो करंट घटता है। फिर अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी तो करंट भी घटता है। So they are interconnected, points are interconnected, better you understand them better will be problem। सिंपल याद रखो कि कंडक्टर को अगर हमने फ्रीज में रख दिया, डी फ्रीजर में, फिर उसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, वेलोसिटी विल बी मोर, करंट विल बी मोर, टेम्परेचर कम होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोर है, ड्रिफ्टिंग इफेक्ट ज्यादा मिल रहा है हमें, करंट ज्यादा मिल रहा है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है।
आगे चल के ओम्स लॉ पढ़ेंगे, more the drift velocity, more will be the current, less will be the resistance. तो ये याद रखो, this is a frequently asked question in board examination, ये वाला, क्योंकि moment you see okay temperature has gone up तो drift velocity भी ऊपर जाएगी, ऐसा नहीं है, wrong. We are talking about the drift velocity, we are not talking about the random velocity of electron. उसकी drifting property temperature बढ़ने से कम हो जाती है because of more collisions per second, less time interval between the collisions. ये घटा तो ये भी घट जाता, तो अपोजिट आंसर है, इसलिए you are likely to commit the mistake here. समझ में आ गया ये? Yes, sir. All right then. What about this one? What is the ratio of drift velocities of electrons if ratio of the length of the conductor is 1:2 connected to same potential difference? देखो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ये सेकंड वाला फार्मूला है ना, कहाँ गया? इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मास, ये तो सब कांस्टेंट कैंसिल हो जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में है उसमें भी कैंसिल हो जाएंगे, टेम्परेचर भी सपोज टू बी सेम देयर एट दैट प्लेस, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1, तो रेशियो पलट जाएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 1:2 दिया तो 2:1 हो जाएगा, बाकी सब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, जितनी कम लेंथ है उतना अच्छा कंडक्टर है वो। वैसे भी रेजिस्टेंस से हम रिलेट कर ही रहे हैं, कम लेंथ का रेजिस्टेंस कम होता है, कम रेजिस्टेंस है तो बेटर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मोर करंट मोर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जिसकी लेंथ 1 है तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल है, जिसकी लेंथ 2 मीटर है तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम है। अच्छा, इसमें एरिया पे डिपेंड कर रहा है क्या? अगर मैं बोलूं एरिया A1/A2 इज 1:2 तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो क्या आएगा? V1/V2 विल बी 1:1। एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पर्टिकुलरली जब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, जब पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, व्हेन पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, ये हम उसका सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं एक ही कंडक्टर में, उसको थिक करके देखो, यहाँ से देखो उसको थिक बना दिया, फिर सेम बैटरी लगा दी, पहले पतला था फिर मोटा वाला, सेम लेंथ का, लेंथ सेम रख रहे है ना, तो एरिया नहीं आ रहा है इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब सेम रहेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम रहेगी। पतले और मोटे कंडक्टर में सेम ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहेगी एज लॉन्ग एज पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। अगर सपोज हमने 2 कंडक्टर सीरीज में लगाए तो करंट रिमेन सेम है, करंट के साथ भी इसका रिलेशन डिराइव करते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ करंट, ये इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज है, ठीक है। देखो ये है, रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ करंट, दो रिलेशन है, दोनों में से जो पूछा जाता है डिराइव इट, अगर बोला जाता है डिराइव तो दोनों में से एक कर सकते हैं, बस एक दे मेंशन यू करंट के टर्म्स में कैसा रहेगा, तो करंट के टर्म्स में सपोज ये तुम्हारा कंडक्टर है, ठीक है, ये द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
Vd is the drift velocity of electrons, n is the free electron density, means electrons per unit volume. यहाँ पे क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या होगा, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी में वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ता है, यहाँ यूनिट भी देखो, पर मीटर क्यूब है, नंबर्स पर मीटर क्यूब। कितने बताए थे मैंने, काफी हाई होते हैं, 10⁻29 के ऑर्डर के होते हैं। न्यूमेरिकल में दिए होंगे तुम्हें, they will be given to you, don't have to worry। कंडक्टर में quite a high number। तो free electron density, free electrons which are taking part in conduction, बॉन्ड वाले नहीं, टोटल नहीं। इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग, अभी देखो सपोज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है vd, मतलब ये क्या होगा, इतना डिस्टेंस कवर्ड मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर में जितनी भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतना मीटर कवर हो जाएगा। सपोज 1 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 मीटर के वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब क्रॉस हो जाएंगे इस क्रॉस सेक्शन से। फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए अज्यूम करते हैं 1 मीटर पर सेकेंड है, तो 1 मीटर वॉल्यूम के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल मेक इट, ये क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर लेंगे। और चार्ज क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया इज चार्ज क्रॉसिंग पर सेकेंड इज कॉल्ड करंट। तो हमें ये पता करना है, अगर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम के 1 सेकंड में क्रॉस हो जाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड होगा उतना। 1 मीटर है तो 1 मीटर वॉल्यूम के क्रॉस हो जाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2 मीटर है तो 2 मीटर के क्रॉस हो जाएंगे 1 सेकंड में, है ना, मीटर पर सेकंड होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट। तो n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम कवर होगा, a into distance per second। vd क्या है, डिस्टेंस पर सेकेंड, vd will be distance per second। तो इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग पर सेकेंड, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स और ये वॉल्यूम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और ये वॉल्यूम कवर्ड पर सेकेंड, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एरिया क्रॉस सेक्शन को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फ्री इलेक्ट्रॉन्स से, तो दैट विल बी इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग पर सेकेंड। और एक ये इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग पर सेकंड होगा यहाँ से, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, ई, तो ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज क्रॉसिंग पर सेकंड हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट चार्ज क्रॉसिंग पर सेकंड में इसको ई से मल्टीप्लाई करो, बिकॉज ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गए, 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस हो रहे हैं इन क्रॉस सेक्शन। तो चार्ज क्रॉसिंग में ई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो चार्ज क्रॉसिंग इज नथिंग बट ए करंट। चार्ज क्रॉसिंग पर सेकेंड इज डेफिनेशन ऑफ करंट। ये क्या है, चार्ज क्रॉसिंग पर सेकेंड Q बाई टी है, उसी को I बोलेंगे। ये Q बाई टी है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड I। हमने क्या किया, पहले इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड मिल गए हमें किसी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करने वाले। यहाँ पे एरो बना देता हूँ मैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो चार्ज क्रॉसिंग पर सेकेंड, चार्ज क्रॉसिंग पर सेकेंड इज नथिंग बट करंट। तो आई इक्वल टू NAVD, ये रिलेशन मिल गया हमें। इसमें भी किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के साथ ये रिलेशन आ गया, जिसमें भी दो तो कांस्टेंट है ना। यहां से अगर हम देखें, सिंस ये देखो, कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे तुम्हें एंड करना है ये डेरिवेशन, यू टू एंड इट हियर। बट हमें ये पता करना है थिन कंडक्टर में मोर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी कि थिक कंडक्टर में, जब करंट सेम रहता है। अभी इसमें करंट सेम है, देखो I सेम है और ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो I ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी, एक को नीचे भेज दो यहाँ पर, ओके ऐसा लिखते हैं इसको, जस्ट होल्ड ऑन। since NAVDE is equal to I,
अभी करंट भी कांस्टेंट कर दो सीरीज, सपोज 2 कंडक्टर है, हर सिंगल कंडक्टर ही है, करंट को फ्लक्चुएट मत होने दो, करंट कांस्टेंट रखो, है ना। बैटरी का वोल्टेज कांस्टेंट रखो तो करंट भी कांस्टेंट रहेगा। तो अभी देखो E कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, तो डिप और ये भी कांस्टेंट ले लिया हमने, तो A नीचे आ जाएगा, थोड़ा बड़ा कर लो इसको। तो डिप्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, है ना। देयरफॉर थिक कंडक्टर विल, अगर एरिया बड़ा है डिप्ट वेलोसिटी, इफ एरिया इज बिगर डिप्ट वेलोसिटी विल बी लेसर। अगर थिन कंडक्टर है तो डिप्ट वेलोसिटी will be more. The thin conductor will have more current, more drift velocity, provided current is constant. Therefore, thin. Okay. ठीक है, ये अब यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। क्रिस्टल कंडक्टर करंट, अगर हमने 2 कंडक्टर ले लिए, एक पतला एक मोटा, और करंट सीरीज में लगा दिया हमने, तो जो पतला वाला है उसका एरिया कम होगा, तो उसके इलेक्ट्रॉन फास्ट जाएंगे, क्योंकि अभी करंट हम देख रहे थे, पहले वाला जो डेरिवेशन किया था उसमें एरिया क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था, है ना। उसमें वोल्टेज कांस्टेंट था, दोनों को पहले लगा दो, ठीक है। अगर पहले वाले की बात करें, थिक एंड थिन को पहले लगा दो, सेम लेंथ का, तो थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता वी कांस्टेंट में जब है। बट अगर सीरीज में लगाएंगे तो करंट कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और सिंगल कंडक्टर भी यूज कर सकते हैं, थिन या थिक, 2 भी यूज कर सकते हैं। तो करंट कांस्टेंट है तो एरिया क्रॉस सेक्शन विल बी डिसाइडिंग फैक्टर, थिन में मोर डिप्ट वेलोसिटी। ये 2 रिलेशन डिपेंड करना पड़ेगा। जब 2 कंडक्टर सीरीज पैरेलल में लगा दिए तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, सीरीज में लगा दिए तो आए, पैरेलल में लगा दिए तो पहला वाला फार्मूला डिप्ट वेलोसिटी के लिए, यहाँ पे डिप्ट सीरीज में लगा तो डिप्ट वेलोसिटी का ऐसा आ जाएगा, I upon NA into E, ठीक है। जस्ट विल वाइंड अप इन 3 मिनट्स। क्वेश्चन दे दो फिर वाइंड अप। तो जैसे ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ये वाला, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स N दिया हुआ है इन कॉपर कंडक्टर। अच्छा, ये प्रीवियस क्वेश्चन एग्जांपल से दिया हुआ है, उसमें यू डोंट हैव टू वरी, दिस इज गिवन। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर, 3 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर लॉन्ग वायर है, यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम लेंगे। एरिया क्रॉस सेक्शन इज गिवन, ए इज गिवन है, एंड कैरिंग द करंट 3 एम्पीयर, करंट भी दिया है। तो दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन। ई तुम्हें याद रखना पड़ेगा कितना होता है, माइनस मत लो यहाँ पर, हमें ड्रिफ्ट स्पीड चाहिए 1.6 into 10 power minus 19, ठीक है। इसमें माइनस मत लो, दैट वी आर इंटरेस्टेड इन ड्रिफ्ट स्पीड इन फैक्ट, ठीक है। तो ड्रिफ्ट स्पीड मिल जाएगी, फिर क्या करेंगे आगे, डिस्टेंस चाहिए, ड्रिफ्ट स्पीड कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज अदर पैरामीटर चेंज नहीं हो रहे, तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी टाइम टेकन विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस को ड्रिफ्ट स्पीड से डिवाइड कर दो तो टाइम मिल जाएगा वन एंड से दूसरे एंड तक आने में। दिस यू कैन डू इट, यू फाइंड दैट ड्रिफ्ट स्पीड बहुत कम आएगी। पहले ड्रिफ्ट स्पीड निकालेंगे ना, इट विल बी इन मिलीमीटर्स पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड। देयरफॉर 3 मीटर कवर करने में दे विल टेक लॉट ऑफ टाइम। बट यू मे बी थिंकिंग कि जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं किसी सिस्टम का, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बीइंग सो स्लो, क्या होता है जहां कहीं भी है, वेयरएवर दे आर, दे विल बी ड्रिफ्टेड इमीडिएटली। पोटेंशियल डिफरेंस सब जगह लगता है तो दे विल गेट ड्रिफ्टेड इमीडिएटली। जैसे हमने स्विच ऑन किया, बल्ब इमीडिएटली जल जाता है ना, इवन इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज मिलीमीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन, स्विच के इलेक्ट्रॉन बल्ब तक नहीं जाते, wherever they are they start drifting there itself।
lightning fast effect होता है. So they don't depend upon the electrons of the switch will go to the bulb, then bulb will be switch on. ऐसा नहीं. तो ये हो गया तुम्हारा 13th क्वेश्चन. ये फार्मूले से ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लो. टाइम निकालने के लिए ड्रिफ्ट अपॉन v डिस्टेंस अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रेशियो ले लो, टाइम मिल जाएगा. ठीक है, दिस इज गुड क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. ठीक है, 13th क्वेश्चन है. और ये मैंने जो सीरीज में देखो 2 कंडक्टर सीरीज में दे दिए, एक थिन है और एक थिक है. करंट तो सेम रहने वाला है उसमें. I1 will be equal to I2. क्या है? क्वेश्चन क्या है देखते हैं. 2 copper conductors of different length are connected in series. Find the ratio of drift velocities of electrons in conductor if ratio of radii is 1:2. करंट सेम रहेगा तो करंट वाला ये वाले फार्मूले से निकालना पड़ेगा, NAVD से. तो कॉपर कनेक्ट, दोनों कॉपर कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी सेम हो गए. एरिया क्रॉस सेक्शन के लिए रेडियस दिया हुआ है, I सेम रहेगा, E सेम रहेगा. केवल इसी पे आ जाएगा फाइनल क्वेश्चन. ठीक है, लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा था. इसमें लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है. लेंथ है कहीं सीरीज में, करंट जब सेम रहता तो लेंथ है क्या? नहीं है. इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है जब करंट सेम रखते हैं. करंट कांस्टेंट मेंटेन करते हैं करंट. दैट इज पॉसिबल इन सिंगल कनेक्टर आल्सो एंड पॉसिबल इन 2 कनेक्शन सीरीज में है. तो तो ये ट्राई कर सकते हैं. डायग्राम मैंने बना दिया है. यहाँ पे I1 = I2 ले सकते हैं सीरीज में. ठीक है, ये होमवर्क में है. और this is also good question. These 2 questions are also very good questions. ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन में देखो important questions. Answer the following questions. Study current flows in the metallic conductor of non-uniform. ऐसा क्वेश्चन दिया भी था मैंने कल, है ना. टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है मेरे ख्याल से. डिप्ट स्पीड भी पूछा है उसमें. हमने डिप्ट स्पीड का डिस्कशन नहीं किया था. अप टू हियर वी आर डन. और सेम ये भी. तो बोथ आर गुड क्वेश्चंस. सॉल्व करके भेजो. Noted. Just make it first. Any difficulty you can ask. You have to select proper question, proper formula. करंट, अगर करंट का दिया है हमें सिचुएशंस तो I = NAVD वाली डिस्कस करेंगे. वोल्टेज दिया है
इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह दिया, वोल्टेज वाली कंडीशन दी है, तो वो यूज करेंगे। ठीक है, both questions can be asked in the board's examination and have been asked. Repeat होते रहते हैं। जस्ट मिनट, देखिए आगे क्या है। तो ये वाला सॉल्व एग्जांपल भी देख सकते हैं 3.1। इन्होंने 3.1 में n is not given directly, तो एवोगाड्रो नंबर से और एटॉमिक मास से n निकाला है उन्होंने। दैट इज मोर और लेस केमिस्ट्री पार्ट इज देयर। कैसे निकालना है? फ्री इलेक्ट्रॉन, बिकॉज one copper atom is donating 1 electron. So using the mass number, Avogadro's number, and density, n has been calculated. This is a solid example 3.1. You can see how they have done it. So yeah, you can solve example 3.1. You can look into. That's all from my side. ये questions है homework में।